حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں شیعوں کے لیے بالخصوص شیعہ ڈگری کالج پی جی کالج لکھنؤ میں ہے، اور اس نے کافی ترقی کی ہے گزشتہ 5-10 سالوں میں، اور یہ لگ بھگ 100 سال پرانا قدیمی شیعوں کا ادبی علمی ادارہ ہے، اور جس طرح سے اس نے گزشتہ 5-10 سالوں میں ترقی کی ہے اسے دیکھ کر کے لگتا ہے کہ واقعی جو ہے یہاں کام ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے درمیان آج اس کالج کے جنرل سیکریٹری صاحب موجود ہیں، یاسو عباس صاحب، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ علمی ادبی اداروں میں مذہبی اور سیاسی ہر جگہ جو ہے ان کا ایک اپنا روب دبدبا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے شیعہ کالج کو آگے بڑھایا ہے ان کی قیادت میں، اسے دیکھ کر کے لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ ان کی خدمت ہے، اور ان جو تنظیمی صلاحیت ہے اس کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یاسو عباس صاحب بہت ہی جو ہے نیک فعال ثابت ہوں گے علمی ادبی ادارے کے لیے، اور ان سے بہت سی جو ہے نیک تمنائیں اور خواہشات وابستہ ہیں ہم لوگوں کی، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ان سے ایک جو ہے وہ شیعہ کالج کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو جائے، جو ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں دور دراز میں بیٹھے ہیں، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہیں، وہ ان سے جو ہے ایک تقویت حاصل کریں۔ تو آئیے حضرات ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ اور یاسو عباس صاحب السلام علیکم، اور بےحد خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ کے ذریعے جو ہے ہم ایک بہت اچھا پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو شیعہ کالج کو جس طرح سے آگے بڑھایا ہے اسے دیکھتے ہوئے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ بالکل آپ کی قیادت کی ضرورت ہے اس وقت پورے ہندوستان میں، اور بالخصوص علمی اور ادبی لحاظ سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ کالج بہت زیادہ جو بہت فعال اور آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے اور اس کی کچھ پرانی یادیں یا پرانی جو اس کی یہ چیزیں تھیں کہ اس وقت تو اتنی ترقیاں دیکھنے میں نہیں آئی، تو اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں شیعہ کالج کے سلسلے میں۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان نقوی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھ حقیر کے لیے وقت نکالا۔ شیعہ کالج ہمارا قومی ادارہ ہے، تقریباً 103 برس پرانا ادارہ ہے، اور یہ پوری صدی کا سفر مکمل کر چکا ہے، اور یہ بزرگوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ ادارہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ قومی امانت ہے، کیونکہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے زندہ رہتے ہیں، لہذا میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ادارے کو خوب سے خوب تر ہو سکے۔ اس کے لیے ہم نے ادارے کو اور آگے بڑھانے کے واسطے ہم نے اس کے اندر مختلف شعبوں میں بانٹنا شروع کیا، جس کے اندر ہمارا شیعہ کالج آف لا ہے، شیعہ کالج آف سائنس ہے، شیعہ کالج آف آرٹس ہے، شیعہ کالج آف ایڈمنسٹریشنس ہے، ہمارے پاس شیعہ کالج آف کامرس ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا گرلس کالج ہے، انٹر کالج ہے ہمارا۔ تو اس طریقے سے ہم اس ادارے کو کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو۔ ابھی ہمارے یہاں نیک کا انسپیکشن ہوا تھا، اور نیک کی ٹیم آئی تھی، اور نیک کی ٹیم جو پورے یونیورسٹی جو کالجز کے اندر اس کا معیار طے کرتی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کے اندر جو ہمیں گریڈ ملا۔ اس وقت یو پی میں کوئی بھی ایسا کالج نہیں ہے جو ہمارے پاس اے گریڈ کالج ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یونیورسٹیز تو ہیں مگر اکیلا کالج ہے جس کو اے گریڈ ملا ہے۔ اور ابھی یو پی انویسٹ سبمٹ ہوا تھا، تو اس کے اندر 15 منٹ ایجوکیشن کے اوپر دیے گئے تھے، اس کے اندر کہ 15 منٹ پورے یو پی سے ایجوکیشن کے بارے میں لیا جائے گا، تو اس میں الحمدللہ 3 منٹ شیعہ کالج کو ملے، اور 3 منٹ میں آپ کے کالج نے، اس کالج نے، قومی ادارے نے 3 منٹ کے اندر کوزے کے اندر سمندر کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے نئے نئے بلاگز بنائے ہیں کالج کے اندر، جب سے ہم نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ ہم نے 5.5 مہینے میں امام رضا علیہ السلام بلاگ بنا کے اس کے اندر ہم نے آرٹس کالج کو شفٹ کیا ہے۔ ہم نے سارے معصومین کے نام سے بلاگ بنائے ہیں۔ ہم نے ابھی حضرت ابو طالب ہال بنایا ہے، بی بی ختیجہ بورڈ روم بنایا ہے ہم نے۔ ابھی ہم نے شیعہ کالج آف لا کو، جو ہمارا بڑا پرانا 3 ایئرس کا لا، بڑا پریسٹیجیس لا ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں،
बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं जो हमारे ला कॉलेज से निकल के गए हैं या कॉलेज से निकल के गए हैं, गवर्नर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं। तो हमने उसमें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के नाम से पूरा एक ब्लॉक तैयार किया है, ओवल शेप में पूरी बिल्डिंग बनाई है और हमने कोशिश इस बात की है कि ला कॉलेज को उसके अंदर शिफ्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंटरव्यू चल रहा है आपके साथ में। आज हमारे यहाँ 5 ईयर के ला का इंस्पेक्शन हुआ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी सेशन में हम 5 ईयर का ला भी इंशाल्लाह हमारे यहाँ उसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस कौमी इदारे को बनाने की और बचाने की और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ज़रा सा भी मौका मिलता है तो हम उसको चूकते नहीं, हम कोशिश करते हैं कि इस इदारे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अभी हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर शिया कॉलेज में एक रोज़गार मेला लगवाया था। अच्छा। हाँ, रोज़गार मेला लगवाया था क्योंकि इस वक्त बच्चों को जॉब फराहम कराना बड़ी बुनियादी ज़रूरत है और उसके अंदर 5000 बच्चों को जॉब मिली है एक ही दिन। यानी सुबह मेला लगा है और रात को सर्टिफिकेट दे दिए। और तकरीबन 58 कंपनीज 58 कंपनीज रिप्यूटेड कंपनीज जो थी उसके अंदर आई थी और उसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज थी। तो 5000 लोगों को हमने जॉब दिलवाई है तकरीबन। और इस तरीके से हम काम करते रहते हैं। तो मुख्तलिफ हमारे यहाँ जो BBA है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर मुख्तलिफ बच्चों को बीच से उठा के लेके चले जाते हैं, जॉब मिलती है। अच्छा। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं बीच में इस किस्म का एक मेला या हाँ, तकरीब होती रहती है। अभी हमें बैंक का मेला भी लगाने की बातचीत चल रही है हमारी कि हम एक बैंकों का मेला लगवाएं जिसके अंदर हमारे कॉमर्स के बच्चे बहुत से हैं, हमारे और दूसरी फील्ड्स के बच्चे हैं, वो उसके अंदर एडजस्ट हो सके। हम साथ साथ जॉब दिलाने की भी कोशिश करते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी कि है तालीम के साथ साथ बच्चों को अगर से रोज़गार से भी इस वक्त जोड़ दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जब बच्चा हमारा नौजवान दिखता है तो फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा। मुस्तकबिल में पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, मगर उसको अपना मुस्तकबिल जो है रोशन नज़र नहीं। अगर से ये फराहम इस तरीके के मौके होते रहें तो उसको एक आस होगी। इंसान चल रहा है, उसको दूर पर रोशनी की किरण अगर दिखाई देगी तो वो उसके सहारे से चलेगा। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं उस किरण को दिखाने की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप रोशनी की किरण दिखा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आखिर यही वो कॉलेज है लेकिन कुछ इस तरह का वो रोशनी नज़र नहीं आती। तो आखिर उसकी क्या वजह है? कोई आपने जो ज्वाइन किया कब से किया है एज ए सेक्रेटरी हिसाब से? मैं सेक्रेटरी मजलिस उलमा 2016 में बना हूँ। और मेरे वालिद मौलाना मिर्ज़ा अख्तर साहब के इंतकाल के बाद में हमको मुंतखब किया गया और एज ए पार्टी लीडर की हैसियत से और सेक्रेटरी मजलिस उलमा की हैसियत से सारी जिम्मेदारियां मेरे सर के ऊपर हमारे बोर्ड ऑफ जस्टिस के जिम्मेदारान ने डाली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको तो ये माजी में जो है इस तरह की कोई ये नहीं था बहुत ज़्यादा हमें इसकी पब्लिसिटी या बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि नैक का तो गुज़श्ता 10 सालों से 20 सालों से है, इससे पहले नहीं था। लेकिन इसके जो वो मेयार थे आप कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? जो आपने तो देखा होगा उस वक्त कॉलेज का वो मेयार नहीं था। तो आखिर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा आपने बड़ी मेहनत की? देखिए, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा। और उसके लिए दिनों रात लगना पड़ता है। हम लोग दिन को दिन रात को रात ही समझते थे। हम लोग 2-2 बजे रात को हम लोग कॉलेज से आते थे। हमारे यहाँ हालत ये थी कि जो इमारत है उसके अंदर से छतें टपकती थी, पानी बहता था और लाइब्रेरीज के अंदर जो बुक्स होती थी उसके ऊपर प्लास्टिक पड़ा रहता था ताकि कम से कम वो बुक्स बच सकें। तो हमने एक ख़ास होता ब्रिकोबा वो छतों पर सारी छतों पर हमने ट्रीटमेंट करा दिया पूरे कॉलेज की ज़्यादातर, ताकि कॉलेज के अंदर एक बूंद भी पानी नीचे न जाए। तो हमने धीरे धीरे करके पहले छतों का काम कराया। पुरानी बिल्डिंग जो हमारी 100 साल पुरानी इमारत है मुरसल आजम बिलाग, वो जगह जगह से उसका प्लास्टर्स टूट गए थे। वो बिल्डिंग जगह जगह से जो था क्रैक्स कर रही थी, तो उसको हमने रिपेयर कराने की कोशिश की। और हमने जब उसको सबको रिपेयर करा दिया उधर साथ साथ हमने नई इमारतें भी बनाना शुरू की, क्योंकि इस वक्त हमारे पास में बच्चा सब मिला के 16-17 हज़ार बच्चा है। जो कितने थे माजी में? कितने? माजी में भी तकरीबन 8,000, 7,000, 10,000 थे बच्चे। मगर इस वक्त हमारे पास जो तो क्या आप इसको ये तस्लीम करते हैं कि जो पिछले जो हमारे सेक्रेटरी साहबान थे या दूसरे लोग थे उनके पास ये इस तरह के टीम वर्क नहीं था, या उनमें जज्बा तो था लेकिन कोई ऐसा माहौल नहीं तैयार हो रहा था जिसकी वजह से ऐसा थोड़ा सा पिछड़ा? या देखिए, बहुत लंबा सफ़र है इस इदारे का और माजी की भी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और माजी की टीम ही उसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वहाँ पर लेके आई।
ताकि हम उसको और आगे बढ़ा सकें। उस वक्त जितने वसाइल थे उन्होंने अपने वसाइल में काम शुरू किया। फिर अभी हम इंशाल्लाह 1-2 ब्लॉक उसके अंदर और बनाने जा रहे हैं। एक हमारे पास हसनैन ब्लॉक हुआ करता था और वो ब्लॉक शान शान नहीं था इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं उसमें छोटा सा हसनैन ब्लॉक 5, 7, 8, 10 रूम्स का वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम इंशाल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से एक ब्लॉक और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से, और हम जो नए इमारतें बना रहे हैं उसको हम पुराना लुक दे रहे हैं। वही डोम है, बिल्कुल आदमी आए तो ये ना समझे कि ये नई इमारत है, वो देखे कि हाँ ये भाई 50 साल पुरानी इमारत है, 40 साल पुरानी इमारत है, ये 80 साल पुरानी इमारत है। वैसे ही डोम देखे, वैसे ही आर्ट, तो वैसे ही उसके अंदर सब कुछ देखे, बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये जो कॉलेज है को एडुकेशन है लड़कियों के लिए और दोनों एक साथ है या अलग अलग है, कैसे? देखिए हमारा कॉलेज तो को एजुकेशन जी, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारा अफिलिएशन है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई एजुकेशन है, मगर हमने बच्चियों के पर्दे का खास ख्याल रखा है। माइनॉरिटी कॉलेज है हमारा और हमें माइनॉरिटी स्टेटस हासिल है, और तो उसके लिए हमने बच्चियों के लिए टोटल अलग इंतज़ाम किया है, सेपरेट। अच्छा, सेपरेट इंतजाम हमने किया, वो हमारा इंटरनल अरेंजमेंट है। अच्छा। और वो हमने उनको बता दिया। नहीं, आपका दो जगह पर आपकी ये है, सीतापुर और दूसरी सीतापुर रोड पे रहे और विक्टोरिया स्ट्रीट बजाजे में। अच्छा, तो वो जो हमारा विक्टोरिया स्ट्रीट बजाजे में है पुराने लखनऊ में, वो हमारा गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स, और वहाँ के ऊपर हम सेपरेट बच्चियों का चलाते हैं और वहाँ के ऊपर हम किसी मर्द को जेंट्स को अलाउ नहीं करते। अच्छा, ताकि बच्ची जब हमारे कैंपस में आए तो उसके पर्दे का ख्याल रखना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, और वहाँ के ऊपर हमारा वॉइस चलता है। अच्छा, तो ये साइंस वहाँ भी होता है जो लड़कियों का है उसमें? हाँ, सब एज इट इज, तीनों लाइब्रेरीज है वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे। अच्छा, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आपके यहाँ लाइब्रेरीज कितनी किताबें हैं लाइब्रेरीज की? हमारी इस वक्त जो लाइब्रेरी है खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अतर लाइब्रेरी है, इस वक्त यूपी की वन ऑफ दी बेस्ट लाइब्रेरी है, और लाखों किताबें हैं इसके अंदर तकरीबन, और ये पोहा सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो रही है पूरी। और वो बच्चा जो है हमारे यहाँ अगर से लाइब्रेरी का मेंबर है तो वो अपने घर से बैठ के या दुनिया की किसी भी डिजिटल भी है, डिजिटल लाइब्रेरी है पूरी, और अप टू डेट हो गया, अप टू डेट पूरा हमने अप टू डेट किया इसको। और अभी जब नई की टीम आई थी तो हमारी लाइब्रेरी को बहुत अच्छे नंबर देके गई है, लाइब्रेरी के काम से बहुत मुतासिर हुए। तो इसमें क्या साइंस की किताबें ज्यादा हैं या मजहब की हैं या इसके अदब की हैं? अंदर ये कोर्सेज की किताबें हैं, कोर्स की, और कोर्सेज के साथ साथ जो और शुअरा के ऊपर हैं और आपके अदबियात के ऊपर रियल बुक ऐसी हैं जो आपको जहन में याद हो कि जो कहीं नहीं है, वो आपके यहाँ है, वो 1 पीस या 2 पीस ऐसी कोई किताब नहीं? ऐसी तो देखिए हम नहीं बता सकते हैं, बहरहाल हैं हमारे पास सारी डिपार्टमेंट वाइज पुरानी है। जी हाँ, और जाहिर सी बात है बहुत किताबें, बहुत ऐसी किताबें होंगी, बहुत सी किताबें हमारे पास, बहुत सी किताबें हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है कि मैं। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, हम तो देखा जब उसमें ऑनलाइन फंक्शन होता है तो आपके यहाँ सेमिनार रूम और ये सब जो बना है, बहुत जैसे लगता है 5 स्टार किस्म का, ऐसे हमें लगता है किसी यूपी कॉलेज में बहुत कम ही होगा रियल सेमिनार रूम टाइप। देखिए अब एजुकेशन प्राइवेट की तरफ मुड़ रही है, जी जी, और लोग प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन में ज़्यादा जा रहे हैं। तो अगर से हम बिल्कुल वही बच्चे को माहौल नहीं देंगे तो हमने स्मॉल क्लासरूम बनाए हैं और हम बच्चों को स्मॉल क्लासरूम में पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा करके दें, ताकि हमने अभी जो अपनी जो किंग नसीरुद्दीन हैदर ग्राउंड बनाया है स्टेडियम, तो लखनऊ का सबसे बड़ा मिनी स्टेडियम है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास सैयद किरमानी साहब को हमने बुलाया था, सैयद किरमानी साहब ने उस मिनी स्टेडियम का आगे इनाग्रेट किया, फिर हमने उसके अंदर एक कैंप लगवाया 5 दिन के लिए, फिर किरमानी साहब को बुलाया। अच्छा, और किरमानी साहब जो थे, हमारी जो इंटर कॉलेजेस टीम है उसके अंदर शिया कॉलेज की टीम ज़्यादातर जीत के आती है, तो इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं वहाँ पर। अभी हम नाइट स्टेडियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आप स्पोर्ट में भी प्रमोट कर रहे हैं? स्पोर्ट में भी हम प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं बल्कि ये लड़कों को। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। फिर हमने पूरे कॉलेज में वाईफाई दिया है। अच्छा, फ्री वाईफाई दिया है बच्चों लीज लाइन वाईफाई। अच्छा, पूरा हमने पूरा टावर लगाया है बहुत बड़ा, और हमने बाकायदा वहाँ के ऊपर गालिबन सारे बच्चों को। तो इन लड़कों को जो आप देते हैं वाईफाई फ्री है, तो कैंटीन भी आपके यहाँ होगी और क्या सहूलतें हैं? हमारे पास कैंटीन भी है वहाँ के ऊपर बच्चों के लिए, जाहिर बात है कि कैंटीन की तो बुनियादी ज़रूरत है। वहाँ के ऊपर रिफ्रेशमेंट के लिए बच्चों के लिए जो आते हैं उनके लिए कैंटीन का भी। जो बच्चे बड़े गरीब हैं, जो इस किस्म के हैं, उनकी पढ़ाई का भी इसमें आपने बहुत ये किया, तो क्या ऐसा कुछ है कि आपने फ्री है या कोई? देखिए, जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते तो हमने गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है,
इस साल तकरीबन हम 2 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिला चुके हैं जी। अच्छा, इस साल। अच्छा 2 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट से इस साल गवर्नमेंट की तरफ से। दिलवाया है। अच्छा, इसके अलावा हम 100 बच्चे ऊपर से कारगिल से लेके आए हाँ हैं वो भी सुना था जी। और हमने 100 बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री में तालीम जो है, पिछले साल से हमने ये काम शुरू किया है लास्ट ईयर ये से। तो बहुत ही अच्छी और बात मैं है। खुद कारगिल गया था, मैंने वहाँ मौलाना रुहुल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला से बात हुई तो उन्होंने बताया टैलेंट से वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे हैं। नीचे से भी बच्चे, अभी मैं श्रीनगर गया था तो मैं वहाँ से भी श्रीनगर से भी 5-6 बच्चे आए हैं, वो भी हमारे यहाँ BBA कर रहे हैं, कोई BSc कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों को माहौल देना चाहिए, कोई कहीं को पर भी हो, ये अगर से बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए दरवाज़ों को खोल देना चाहिए। अच्छा ऐसा देखा गया है बहुत से बच्चे हमारे जैसे IAS में जो है वो बैठना चाहते हैं या वो नेट और JEE का और नीट का इम्तहान देना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप कोऑपरेशन कर रहे हैं या अलग से सोच रहे हैं कि हाँ इनको भी एक कोचिंग टाइप से कुछ उसका एहतमाम किया जाए कि बिल्कुल ज़रूरत है हमारे कौम में, जैसे डॉक्टरी की तरफ है तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी कुछ पहल आप कर रहे हैं आपकी कॉलेज की? देखिए हमारे यहाँ भी हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से बातचीत हुई थी और बातचीत चल रही थी, फ्री IAS IPS ट्रेनिंग जी कोचिंग की जो है वो बातचीत चल रही है। जी जी, तो उम्मीद है कि हमें कुछ सीट्स मिल जाएगी इसमें, ताकि बहुत हम अच्छी बात है क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरत है। अच्छा आप ये बताइए जो सेमिनार आपने किया बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल और नेशनल, तो इस सेमिनार में जो मकाले पढ़े गए तो उसको जो है वो पब्लिश करेंगे और ये सारी चीज़ें हैं, तो जो बच्चे हमारे यहाँ आपके यहाँ जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो आपने एक बार कहा था कि मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस के मकबरे और उनके सिलसिले में, तो क्या आप इस किस्म का भी इरादा रखते हैं शुरू में कि आप उन बच्चों को मीर दबीर अवार्ड या मीर अनीस जो उर्दू में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है आपके यहाँ? देखिए हमने भी मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को पर शिया कॉलेज जो हमारा उर्दू डिपार्टमेंट है जी तो उसने प्रोग्राम किया था शिया कॉलेज में, बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ और उसके अंदर हमने अवार्ड्स दिए लोगों को, और हम बच्चों को भी अवार्ड्स, जो बच्चे नुमाया नंबर से कामयाबी हासिल कर रहे हैं उनको मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के नाम से हम अवार्ड दे रहे हैं। और शिया कॉलेज ने जो जिम्मेदारी भी उठाई थी कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मकबरों की बहुत ज़्यादा हालत है, जी तो जब लोग लखनऊ आते हैं और बाहर मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का नाम सुनते हैं जी और उसके बाद जब लखनऊ आके उनके मकबरे बजाते हैं तो एक अजीब सा लगता है। जी तो शिया कॉलेज ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि शिया कॉलेज मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मकबरे के अंदर जो है रेनोवेशन शिया कॉलेज करेगा और उसके अंदर कॉलेज जो है अपने मुलाजमीन रख के वहाँ के ऊपर उसको बिल्कुल जो पुराना है उसको तर्ज पे बेहतर से बेहतर करे, तो वो जो बिल्कुल उजालिस्तान की तरह पड़ा हुआ उसको खूब से खूबतर बनाया जा सके। मगर ज़ाहिर बात है उनके फैमिली की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिला, जबकि हमने ये बात भी कही थी कि हम एक बच्चा मीर अनीस के घर का, एक बच्चा मिर्ज़ा दबीर के घर का, हम ज़रूर उसमें लेके कॉलेज में उसको मुलाजमत देंगे। अच्छा और वो बच्चा कॉलेज भी ना आए, वो बच्चा वहीं पर रह के खिदमत करे। माशाल्लाह। मगर उन लोगों को से जब मेरी गुफ्तगू हुई उसके बाद में और मैंने उनको अपना प्लान बताया तो दोनों हजरात तैयार थे, क्यों नहीं हुए वल्लाह नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। न मीर अनीस के यहाँ से न मिर्ज़ा दबीर साहब के यहाँ कोई इंटरनल फैमिली से जो सपोर्ट मिलना जी, चाहिए था नहीं मिल पाया। वो सपोर्ट हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, उनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी, ज़ाहिर बात है, जी, कुछ ना जी, कुछ। जी। अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता, बहरहाल वो हमको नहीं मिला। अच्छा जो लड़के आपसे जैसे पूरे हिंदुस्तान से आपसे चाहते हैं कि आपके यहाँ कॉलेज में आकर के पढ़ें, तो क्या जैसे बंगाल से हैं या कहीं मुंबई से हैं, तो क्या आप उन्हें कुछ ऐसा ये दे सकते हैं एडमिशन के सिलसिले में सहूलतें या कोई उनको? देखिए बच्चा अगर से कहीं से भी आए तो हम उसको जो है एडमिशन देते हैं, अच्छा और हमारा ऑनलाइन, इसीलिए हमने जो है एडमिशन टोटल ऑनलाइन रखा है कि बच्चा कश्मीर से हो, बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, कहीं से भी अगर तो पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो हमें कॉलेज में, हमारे कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बस यूनिवर्सिटी के नाम्स को पूरे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। आप उनको सहूलतें क्या देंगे अगर जैसे दूर दराज से आ रहे हैं, जैसे आप कारगिल से अपने, तो उनको कुछ आप बताएं कि क्या उन्हें कुछ सहूलतें, जो सहूलत हम मुमकिन हो सकती है वो सहूलत देंगे। उनकी फीस पूरी माफ़ करवाने की कोशिश की जाएगी, स्कॉलरशिप दिलवाने की कोशिश की जाएगी। प्लस हमारा अभी जो आपके नाम लीजिए कि हॉस्टल का मसला है, हमारे पास पुराना हॉस्टल है मगर इंक्रोचमेंट है, उसके ऊपर कब्जा है सब, तो हम उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर से उसको हमने छुड़ा लिया इंशाल्लाह तो हमारा बहुत बड़ा हॉस्टल ही बनाने का इरादा है। एक हम गर्ल्स हॉस्टल ही बनाने का इरादा रखते हैं, और हम बहुत बड़ा डालीगंजी में हमारा हॉस्टल्स का वो है, तो हम उसके लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वक्त कम है, काम बहुत है,
तो देखिए कहाँ तक कामयाबी है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर एक ज़रा सा आखिरी में ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कौम से आपको बिल्कुल हमें लगता है कि 90% के लगभग आपको ताउन मिल रहा है, लेकिन कुछ कहीं ऐसा है कि जहां आपको ताउन नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं, चंद नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो अदारे को जो है वो एक तरह से बदनाम करने की भी कोशिश की है, तो वो कहाँ तक आप देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं उन्हें? देखिए हम हमेशा उन लोगों को निगलेक्ट करते हैं जी और कभी हम उन लोगों का जवाब नहीं देते हैं जो लोग इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि हमारा काम खुद बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इन नैक में ये मिलना तो आसानी बहुत बड़ी बात है, इफ्तिखार की बात है, बहुत लेकिन बड़े इसके मिलत के लिए बावजूद क्यों? फख्र की बात है। हाँ, तो बहरहाल इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग इदारे में अक्सरियत हमें सपोर्ट कर रही है, जी, हम पैसे से सपोर्ट नहीं चाहते। हमने शिया कालिद के नाम पर किसी से चंदा नहीं लिया। अच्छा अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने या मैंने कभी भी किसी से 5 रुपए, 10 रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ कोई चंदा नहीं लिया। हम गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं और हम उसमें अपनी सारी जो फीस होती है जो है उसमें अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बहुत बड़ा हमारे पास में स्टाफ है हमारे पास, जी जी, तो हमारे पास सेल्फ फाइनेंस का स्टाफ है जो लगा हुआ है, जो जिसको हम लोग कालिद सैलरी देता है। जी तो बहरहाल हम लोग कोशिश इस बात की कर रहे हैं, और मुखालिफत होती रहती है, मुखालिफत से हम घबराते नहीं हैं। हम मुखालिफत का मुंह तोड़ जवाब अपने काम के ज़रिए से दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखा गया। अच्छा, आपके क्या गवर्नमेंट से सैलरी मिलती टीचरों की जो है, जी। वो यूजीसी की तरफ से? गवर्नमेंट से। सर, जी हाँ, गवर्नमेंट से। कितने स्टाफ हैं इस वक्त आपके हमारे पास टीचिंग में टीचिंग में हमारे पास तकरीबन 115 जो हैं हमारे पास में टीचर्स हैं, टीचर? और हमारे पास क्लरिकल स्टाफ है, और उसके बाद में 4th क्लास के एम्प्लॉइज़ हैं, जी जी, प्लस हम लोग ने जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज Self चल रहे हैं finance, उसमें अच्छा। स्टाफ पूरा लगा हुआ है। ये- हमारे पास इस वक्त तकरीबन 500 से 700 का स्टाफ है। तो इसमें जो उर्दू का जो शोबा है खास तौर पे, और फारसी का, उसमें किस तरह का है? मतलब एमए के क्लासेस होते हैं या पीएचडी भी होती है? पीजी क्लासेस होते हैं। पीएचडी आपके यहाँ होती है? पीएचडी के लिए अभी यूनिवर्सिटी ने हम लोग को ओके कर दिया है। अभी ओके कर हमारे दिया। तकरीबन 33 लोग प्रोफेसर बनाए उन्होंने, मुझे बहुत बड़ी शिया कालिद की कामयाबी है। 33 से 35 प्रोफेसर एक दिन के अंदर, अच्छा अच्छा हमारे एक ही दिन के अंदर हमारे जो हैं, अच्छा। एक ही दिन में सबके आदेश। तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं या कॉलेज में भी हैं? कॉलेज में भी प्रोफेसर बने अच्छा, हैं। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर बहुत फहीम बड़ी अब्दुल्ला, बात है जी। हमारे पास इस वक्त 35 के आसपास प्रोफेसर हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर हैं 35 के आसपास। अच्छा। जी हाँ। आपके यहाँ जो स्टाफ होंगे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जी। होंगे, सब तरह से के होंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। तो ये हमारे यासूब अब्बास साहब थे जो बिल्कुल कौम की खिदमत कर रहे हैं, अदबी, इल्मी और मजहबी हर लिहाज से आपने देखा होगा। और अभी जैसा कि आप सुन रहे थे कि इन्होंने जो है वो शिया कॉलेज को ज़मीन से आसमान पर ले आए हैं। हालांकि कॉलेज तो बिल्कुल एक नाम था, उसकी पहचान थी, लेकिन उसको एक नया डायमेंशन दिया है, और नई जो पॉलिसी है उसके तहत भी ये काम कर रहे हैं। और कॉलेज में टीचर के में इजाफा किया है, बच्चों की जो रुझान है उसे बढ़ाया है, और कॉलेज को एक नई सूरत दी है। और इनसे उम्मीद है कि बिल्कुल आने वाले वक्त में शिया कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाएगा, और यहाँ से बड़े बड़े जो है स्कॉलर जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलेंगे। और उम्मीद की जाती है कि ये कॉलेज दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और इसी के साथ हम अपने इस छोटे से प्रोग्राम को अपने नाज़रीन के लिए जो है वक्त निकाला है और दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।